we have discussed the chapter components of food. Now we will move towards some activities. But before activities, we will take a pre-test. A request before starting the question answers. For easy learnings, like the video, subscribe the channel, share and press the bell icon button. For pre-test, first question is basic unit of living organism is cell membrane, nucleus, cytoplasm, cell. So basic unit is the cell. Other parts are cell organelles, but they are not the basic unit because they themselves cannot make full body, full organism on replication. अगर उनका रिपीटेशन किया जाए तो बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारी न्यूक्लियस, बहुत सारे साइटोप्लाज्म अकेले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सेल में ये सब प्रेजेंट होते हैं और सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है. सो बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, food has essential blank which are essential for our bodies. Vitamins, proteins, nutrients, carbohydrates. Vitamin, protein and carbohydrate are also nutrients. So the option third, nutrients, cover all other options. तो फूड में ये सब होता है, लेकिन इन सब को कवर करने वाला ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स. So food has essential nutrients which are essential for our bodies. Food is necessary for respiration, repairing damaged body cells, growth, all of the above. So here we can say food is necessary for all of the above. कैसे? सबसे पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में आता है ब्रीथिंग, और जब हमने सांस लिया तो उसके साथ हमने ऑक्सीजन जो अंदर ली है उसका यूज़ करते हुए एनर्जी जब तक हमें मिलती है, और उस प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड, अदर मटेरियल्स मिलते हैं, उनका बॉडी से बाहर आना, ये सब कुछ आता है रेस्पिरेशन में. सो फूड इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी. रिपेयरिंग डैमेज बॉडी सेल्स, हमें इसके लिए चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? फूड से. ग्रोथ के लिए भी मेन कंपोनेंट, मेन न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन. सो फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? इट इज सेल. कैन फोटोसिंथेसिस बी शोन इन एन इक्वेशन? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद करो, आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी लिखवाया है मैंने. Water and minerals move up from the root to the stem and leaves through pipe-like vessels, veins, arteries, channels. So arteries and veins ये होते हैं blood circulation के लिए. But water and minerals from root to stem and leaves goes through pipe-like vessels. Animals are directly dependent on blank for their basic survival. Plants. Photosynthesis is important for survival of all organisms because it produces oxygen and energy. एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो एनर्जी हम नहीं यूज करते, प्लांट्स खुद की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं. तो बाकी डिपेंड होते हैं फूड एंड ऑक्सीजन के लिए. फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस टेक्स प्लेस इन. अब लीव्स की बात करें तो लीव्स तो उसमें सिकुड़कर स्पाइंस बन जाती हैं, और स्पाइंस में फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता. लेकिन कैक्टस तो पूरा का पूरा ग्रीन होता है
और वो ग्रीन पार्ट होता है उसका स्टेम। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? जहाँ क्लोरोफिल होगा, दैट इज स्टेम। Photosynthesis will not take place in absence of nitrogen, stoma, vacuole, chlorophyll. अब इनमें से कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? दैट इज क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, और लाइट को एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉफ्स? ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑल प्लांट्स? No. Fungi, animals, they are not autotrophs. All plants नहीं कह सकते क्योंकि कुछ plants autotrophs नहीं होते, जैसे कि फंगी autotroph नहीं होती। Next is main part of a stomata cell are stoma, chloroplast, guard cells, all of the above. बिल्कुल आप देख सकते हैं all of the above. Food in plants is finally stored in the form of glucose. Which of the following is not an end product of photosynthesis? Nitrogen. Plants prepare their food in green leaves, green stems, green branches. All of the above, because क्लोरोफिल अब हर पार्ट में प्रेजेंट है, तो जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी वहाँ पे फूड प्रिपरेशन का काम फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हो जाएगा। Two living organisms coming together in an association that is mutually beneficial is known as, it is known as symbiotic relationship. Which two living organisms among the following form lichens? Fungi and moss, cuscata and tomato, rhizobium and beans, algae and fungi. So it is algae and fungi. Which one gets its food from dead and decaying matter? Pitcher plant insectivorous है, cuscata पैरासाइटिक है, ब्रेड माउल्ड। बट लेट्स सी द नेक्स्ट, राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स की नोड्स में रहता है, वो भी ना मरे हुए से अपना फूड इकट्ठा करता है ना ही किसी को मार के। बट ब्रेड माउल्ड में जो फंगस लग जाती है वो ब्रेड को डिके करते हुए फंगस अपना फूड ऑब्टेन करती है, सो इट इज ब्रेड माउल्ड। व्हेन ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स व्हिच काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स शुड द फार्मर्स अवॉइड? पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। बट पेस्टिसाइड इज़ नॉट अ फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन की उन्हें ज़रूरत है तो नाइट्रोजिनस होना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो सभी को बेनिफिट देते हैं, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होता है। सो वी विल सी द डिस्कशन एंड द डिस्क्रिप्शन लेटर ऑन। लास्ट क्वेश्चन इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग इज लैक्टोबैसिलस। बट लैक्टोबैसिलस तो मिल्क में होता है। माउल्ड देखिए ब्रेड पे होता है, ब्रेड को डिके करते हुए अपना फूड ऑब्टेन करता है, नॉट। राइजोबियम, yes, it lives in nodes of leguminous plant roots. It is a nitrogen fixing bacteria. Let's submit our test. 95%. I think one question has been wrong attempted.
Let's see which one is wrong attempted. Last second, pesticides. The correct answer is nitrogenous fertilizer. Leguminous plants की रूट्स की नोड्स में राइजोबियम बैक्टीरिया दैट इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया वो रहता है. सो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है. सो दे डोंट नीड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स. I hope you enjoyed the video. Please let us know in the comment section. Bye bye.